Hello and welcome to Umang where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है it reads what is the significance of Indo-US defense deals over Indo-Russian defense deals discussed with reference to stability in the Indo-Pacific region. यह आया था GS पेपर 2 2020 में और 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स और ये हमारे सिलेबस के इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट से आया था. आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं. तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि जो इंडो यूएस डिफेंस डील्स हो रही है हाउ विल दे हेल्प इंडिया स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन. First thing is that it will help India to keep a check on China because now we will have better access to intelligence and geospatial information which will be provided by the USA. उसके बाद क्या है, it will also help us to become a net security provider in the region because the new equipment is expected to increase our reach and capabilities in the region, especially in the Indian Ocean region. Then we will also be able to develop our blue water economy because we can now protect our economic interest and sea lanes of communication in a much better manner. तो आइए अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि वाई यूएस इक्विपमेंट ओवर रशियन इक्विपमेंट. फर्स्ट थिंग इज दैट द यूएस इक्विपमेंट अलाउज अस टू एक्सपैंड अवर नेवल रीच. द रशियन डिफेंस इक्विपमेंट डिड नॉट हैड दैट मच मॉडर्न कैपेबिलिटीज so to expand our naval reach, but जो US का equipment है that is much more modern and sophisticated. Then contrasting and new equipments are provided by the USA. China already has a lot of Russian defense equipment in its inventory. तो जो US का equipment है वो different है और हमें एक edge देगा over China, especially in Indo-Pacific. After then, we will also be able to ensure free movement in South China Sea because equipment is expected to boost India's naval offensive strength, especially in South China Sea. And at last, it will also strengthen the diplomacy, the military diplomacy of US and India. तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर एक रफ ड्राफ्ट कैसे लिख सकते थे. तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि रशिया एज अ सोर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जो है लास्ट 50 ईयर्स या हाफ अ सेंचुरी से रहा है, बट विद टाइम वी हैव डाइवर्सिफाइड अवर इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस, फ्रांस एंड इसराइल. इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. देन इन बॉडी यू कैन राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस defense deals which are happening. So it will provide a check on China. It will help India to emerge as a net security provider, especially in Indian Ocean region. Then you will have to also give the issues that Russia may grow closer to China. It may also supply weapons to Pakistan. And then you will have to suggest way forward कि हम future में क्या कर सकते हैं, what should be our course of action. And then you can conclude. So in conclusion, you can write that due to growing Indian economy, it becomes very important for India to ensure free and open and inclusive Pacific, and which can be only done with new and modern defense equipments. तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते थे. So this is the question which has been given to me. So in introduction, I can write that India has been a notable defense trade partner for Russia for past half a century or for 50 years or 5 decades. But over the time, we have diversified with USA, France and Israel becoming our defense partners also, and now US is speedily replacing Russia as primarily defense partner. ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट बॉडी का, तो सिग्निफिकेंस क्या है इंडो यूएस डिफेंस डील का ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील. तो पहली बात तो ये चेक ऑन चाइना प्रोवाइड करेगा विद एग्रीमेंट सच एज बेका, लिमाओ, कोमकासा दैट विल हेल्प इंडिया टू गेट बेटर इंटेलिजेंस एंड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन विच रशिया वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड अर्लियर. Then we have contrasting and new equipments हमें मिलेंगे. So China already has a lot of Russian defense equipment. So with addition of US equipments, India will have better advantage or edge over China. ओके, हमारी इन्वेंट्री में नए इक्विपमेंट्स आएंगे. इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन सच एज न्यू इक्विपमेंट सच एज MQ-9 ड्रोन्स. दिस विल बी प्रोवाइडेड टू द इंडियन नेवी बाय द USA. Then it will expand our naval reach also. Russian defense equipment did not had that much modern capabilities and had very limited capabilities. Okay, US defense equipment are much more modern and sophisticated. Example is P-8I aircraft, which allows you to better surveillance for Indian Ocean. Then we have free movement in South China Sea. So it will help us for a free movement in South China Sea. Especially it will help us to develop a defense relationship with ASEAN countries such as Vietnam. देन इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू बिकम अ ब्लू वाटर इकॉनमी, क्योंकि उससे क्या है, हम अपने जो इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे मलक्का स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन, इनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और टाइम आने पे हम इनको चोक भी कर सकते हैं. एंड देन इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड USA, स्पेशली द मिलिट्री डिप्लोमेसी. फिर इशूज़ क्या क्या आएंगे हमें वो भी बताना रहेगा. सो रशिया में ग्रो क्लोजर टू चाइना, ठीक, बिकॉज इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स द USA. Russia already has removed arms embargo on Pakistan, so it may supply high sensitive technology to Pakistan in the future. It may also put projects such as INST at jeopardy.
ठीक है, जो रशिया और इंडिया के बीच कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो भी कोल्ड में जा सकता है, ठंडे बस्ते में जा सकता है। फिर इंडिया में ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू इंटीग्रेट सो मेनी वेपन्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स विच में नॉट बी इंटर ऑपरेबल। तो ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप रशिया से कुछ ले रहे हो, यूएस से कुछ ले रहे हो, एंड देन रशिया में बिकम वेरी ऑफ शेयरिंग हाई एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन द फ्यूचर, बिकॉज हम यूएस की तरफ टिल्ट किए जा रहे हैं। तो अब वे फॉरवर्ड आप क्या दे सकते हो? So in way forward you can write Russia can be included in the larger picture of Indo-Pacific. आप रशिया को भी इंक्लूड कर लीजिए, because the far east of the Russia has large amount of minerals which are very much required for India's growth, and it needs a large amount of investment. The far east needs a large amount of investment, so India can provide that investment. फिर इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट विच इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो हम खुद ही घर में अपने इक्विपमेंट्स बनाएं। और उसके अलावा वी कैन हैव, इंडिया शुड लुक एट द जॉइंट प्रोडक्शन रेदर देन होलसेल इंपोर्ट। यू कैन जॉइंट प्रोड्यूस, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हुआ था बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एंड M777 हाउट्जियर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए जो हुआ था। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, गिवन द इमर्जिंग थ्रेट ऑफ चाइना एंड ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू एंश्योर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, सो टू ग्रो इट्स ब्लू वाटर इकोनॉमी एंड बिकम एन एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। इस तरीके से आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो। तो आइए अब हम और एक क्वेश्चन देखते हैं जो फ्यूचर में आ सकता है। So the question asks, Indian projects of connectivity, though conceptualized rightly, are facing various hurdles which may affect India's ability to turn it into blue water economy. Examine the statement while suggesting solution. तो आपको ये बताना है कि इंडियन कनेक्टिविटी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, INSTC हो गया, ठीक है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो गया, और बाकी जो भी इंडिया के कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, दो दे आर कॉन्सेप्चुलाइज राइटली, इनका कॉन्सेप्ट सही है, आपको बताना है कि ये क्यों क्यों बनाया गया, इनके कॉन्सेप्ट बताना है, बट दे आर फेसिंग वेरियस हर्डल्स, बट ये बहुत सारे हर्डल्स फेस कर रहे हैं। जैसे कोई है फाइनेंसिंग का हो गया है, किसी प्रोजेक्ट में जो है कि सारे मेंबर्स ऑन बोर्ड नहीं है, INSTC में सारी कंट्रीज अभी तक हम ऑन बोर्ड नहीं ला पाए। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में भी जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर अभी तक स्टडी नहीं हुआ है, स्टडी अभी भी, फिजिबिलिटी स्टडी अभी भी बची है पूरी तरीके से। इस तरीके से ये जो है सारे प्रोजेक्ट्स जो है वेरियस हर्डल्स फेस कर रहे हैं, जो जिसके कारण इंडिया का जो ब्लू वाटर इकोनॉमी का सपना है वो जो है रुक रहा है कहीं ना कहीं। इट में अफेक्ट इंडियाज एबिलिटी टू बिकम इनटू अ ब्लू वाटर इकोनॉमी। एंड एग्जामिन द स्टेटमेंट, हमने एग्जामिन कर लिया, अब आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करने हैं क्या। तो सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हो, लाइक माइंडेड कंट्रीज को इन्वॉल्व कर सकते हो, सच एज जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, इनको आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि फाइनेंसिंग के लिए आप नए तरीके लाइए, जैसे मसाला बॉन्ड हो गया, उनको आप यूज़ कर सकते हो फाइनेंसिंग के लिए। तो दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू टेल कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। दो ये कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सही तो हैं, बट इनमें दिक्कत क्या आ रही है कि ये कॉन्सेप्चुलाइज सही तरीके से किए गए पर इनको कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा है, या बाकी चीज़ें इनमें दिक्कत आ रही है। एंड दिस इज द आंसर फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर दोज हु आर राइटिंग इन हिंदी कैन नोट इट डाउन। So I wish you all the best for your examination, and a very thank you for this lecture.